हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आई होप आपने पार्ट वन इसका देखा होगा मेरे वीडियो का, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये क्लास 12 के लिए है, थीम 9। दिस इज़ पार्ट 2। इसमें सिमिलरली मैं एमसीक्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको उसके कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ भी जो आ सकता हो एग्जाम में, मैं आपको समझा सकूँ। शुरू करते हैं पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर मेड पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ऐसा कौन सा मुगल रूलर था जिसने जो कोर्ट की लैंग्वेज है वो पर्शियन बनाई थी? अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां? एंड इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स, इट वाज अकबर हु मेड पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो हम बुक भी रेफर करेंगे। इट वाज अकबर हु कॉन्शियसली set out to make Persian the leading language of the Mughal court. Cultural and intellectual contacts with Iran, as well as a regular stream of Iranian and Central Asian migrants seeking positions at the Mughal court, might have motivated the emperor to adopt the language. तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि why did Akbar made the Persian as the language of the court? तो आपके पास आंसर है because of the Iranian and Central Asian migrants seeking positions at the Mughal court. It must have motivated the emperor to adopt the language of Persian. Persian was elevated to the language of empire, conferring power and prestige on those who had a command of it. यानी कि जिसको पारसी या पर्शियन आती थी उसको एक दर्जा मिल गया था, उसकी एक पहचान बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which Mughal ruler commissioned the construction of a white marble tomb for Sheikh Salim Chishti? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि वो कौन सा मुगल रूलर था जिसने कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टॉम शेख सलीम चिश्ती के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए शुरुआत की थी। ऑप्शन हैं अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं। और स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है इट वाज अकबर the Mughal ruler who commissioned the construction of white marble tomb for Sheikh Salim Chishti. तो हम स्टूडेंट्स इसके लिए बुक को भी रेफर करेंगे। In the 1570s he decided to build a new capital, that is Akbar, which is Fatehpur Sikri. One of the reasons prompting this may have been that Sikri was located on the direct road to Ajmer, where the Dargah of Sheikh मोइनुद्दीन चिश्ती had become an important pilgrimage center. तो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1570 में यानी 1570 फतेहपुर सीकरी was made as a new capital. What could have been the reason for that? तो इसमें आपको लिखना होगा the reasons for फतेहपुर सीकरी becoming a new capital was that the Sikri was located on the direct road to Ajmer, where the Dargah of Sheikh Moinuddin Chishti was there, and it had become an important pilgrimage center. So that is one reason. The Mughal emperors entered into a close relationship with Sufis of the Chishti Silsila. Akbar commissioned the construction of a white marble tomb for Sheikh Salim Chishti next to the majestic Friday Mosque at Sikri. तो यहाँ पे हमको पता लग गया है कि अकबर ने ही शेख सलीम चिश्ती के लिए एक वाइट मार्बल टॉम बनाई थी, which was next to the Friday Mosque at Sikri. The enormous arched gateway was called as बुलंद दरवाज़ा। ये पहले एमसीक्यू में हमने पढ़ लिया है। तो किस लिए बनाया था बुलंद दरवाज़ा? which was meant to remind visitors of the Mughal victory in Gujarat. तो ये जो बुलंद दरवाज़ा था एक यादगार बनाया हुआ था कि मुगल की विक्ट्री गुजरात में हुई थी। और इन 1585 द कैपिटल वाज ट्रांसफर टू लाहौर, यानी कि 1585 में फतेहपुर सीकरी से लाहौर कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल, एंड अकबर क्लोजली वॉच द फ्रंटियर फॉर 13 ईयर्स। यानी कि 13 साल तक अकबर ने ये संभाला सब कुछ। Shahjahan pursued sound fiscal policies and accumulated enough money to indulge his passion for building. इसके बाद शाहजहां थे जिनको बिल्डिंग में बनाने का पैशन था। Building activity in monarchical cultures, as you have seen in the case of earlier years, was the most visible and tangible sign of dynastic power, wealth and prestige.
In the case of Muslim rulers, it was also considered an act of piety. तो ये सब किस लिए बना, कैसे बना, ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What is the meaning of Sulhaikul? Absolute peace, enlightened rule, divine guidance, state is all powerful. तो स्टूडेंट्स, सुलहाइकुल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट शांति, एब्सोल्यूट पीस, एनलाइटन रूल, या डिवाइन गाइडेंस, या स्टेट इज ऑल पावरफुल. और इसका स्टूडेंट्स आंसर है सुलहाइकुल का मतलब होता है एब्सोल्यूट पीस. थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे 5.2, अ यूनिफाइंग फोर्स. Mughal chronicles present the empire as compromising many different ethnic and religious communities, Hindus, Jainas, Zoroastrians and Muslims. As a source of all peace and stability, the emperor stood above all religious and ethnic groups, mediated among them and ensured that justice and peace prevailed. यानी कि जो राजा था, मुगल एम्पर होता था, ये सबका सुलह कराता था, सबके अंदर शांति बरकरार रखता था. अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडियल ऑफ सुलह-ए-कुल, ब्रैकेट पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट पीस, as the cornerstone of enlightened rule. In Sulhaikul, all religions and schools of thought had freedom of expression, but on condition that they did not undermine the authority of the state or fight among themselves. यानी कि बेसिकली ये आप समझ लिए डिसिप्लिन में रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए ये सुलह-ए-कुल, एब्सोल्यूट पीस किया जाता था. The ideal of Sulhaikul was implemented through state policies. The nobility under the Mughals was a composite one comprising Iranis, Duranis, Afghans, Rajputs and Deccanis, all of whom were given positions and awards purely on the basis of their service and loyalty to the king. Further, Akbar abolished the tax on pilgrimage in 1563 and jizya in 1564. तो स्टूडेंट्स, हमने ये इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ जिजिया. जिजिया एक टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम लोगों को कंट्रोल करने के लिए या उनकी या प्रोटेक्शन देने के लिए मुस्लिम एम्परर या मुस्लिम रूलर्स चार्ज करते थे. तो इट वॉज abolished in 1564 by Akbar. As the two were based on religious discrimination, क्योंकि वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस थे, क्योंकि आप नॉन मुस्लिम से आप चार्ज करते थे कि भैया हम राजा हैं तुम्हारे, हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान नहीं हो, इसलिए क्योंकि हम आपका यहाँ पे देखभाल करेंगे या हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लिए आप टैक्स दीजिए. दे वर बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स वाई दे वर abolished by Akbar. Instructions were sent to officers of the empire to follow the precept of सुलह-ए-कुल in administration. और सबको बोला गया था एब्सोल्यूट पीस की पॉलिसी फॉलो की जाए. इसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं, which is also important. All Mughal emperors gave grants to support the building and maintenance of places of worship. यानी कि जो मुगल एम्परर या राजा होते थे, जो भी पूजा के स्थान होते थे या जहाँ पे लोग अपने भगवान के लिए वर्शिप करते थे, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे या ग्रांट्स किया करते थे. इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, यानी कि लड़ाई में भी अगर मंदिर, मस्जिद वगैरह सब तोड़ दिए जाते थे, तो ग्रांट्स वर लेटर इशूड फॉर देयर रिपेयर, उसकी रिपेयर के लिए बाद में पैसा दिया जाता था. As we know from the reigns of Shah Jahan and Aurangzeb, however, during the reign of the latter, the jizya was reimposed on non-Muslim subjects. लेकिन ये सब शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे हुआ था. लेकिन इसमें ये भी मेंशन किया कि औरंगजेब जब वापस आया, औरंगजेब ने जब अपने राजभार संभाला, उसने जिजिया दोबारा से रीइम्पोज कर दिया था, जो कि अकबर ने एक बार हटा दिया था. शाहजहां's jeweled throne is described in which मुगल क्रॉनिकल, यानी कि जो शाहजहां का रत्नों से जड़ा हुआ राजगद्दी है, वो किस मुगल क्रॉनिकल में डिस्क्राइब करी गई है? बादशाहनामा, N.A. अकबरी, अकबरनामा या हुमायूनामा. सो स्टूडेंट्स,
इसका जवाब है बादशाह नामा। स्टूडेंट्स, सो शाहजहां का ज्वेल थ्रोन इज डिस्क्राइब्ड इन बादशाह नामा। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो अब देखेंगे द ज्वेल थ्रोन के ऊपर पूरा एक आपका पार्ट आपके बुक में मेंशन्ड है। पढ़ते हैं जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर दैट ऑल्सो। दिस इज हाउ शाहजहां ज्वेल थ्रोन, तख्त ए मुरस्सा, यानी कि शाहजहां का जो ज्वेल थ्रोन है उसको क्या कहा जाता था, तख्त ए मुरस्सा, इन द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस इन द आगरा पैलेस इज डिस्क्राइब्ड इन बादशाहनामा। तो ये बादशाहनामा में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, जो कि आगरा पैलेस में शाहजहां का गद्दी को या थ्रोन को रखा हुआ था। दिस गॉर्जियस स्ट्रक्चर हैज अ कैनोपी, कैनोपी यानी कि ऊपर जैसे आप छतरी किसको कह सकते हैं, सपोर्टेड बाय 12 साइडेड पिलर्स, यानी कि 12 उसके साइड में पिलर्स होते थे और ऊपर कैनोपी होती थी, एंड मेजर्स 5 क्यूबिट्स इन हाइट फ्रॉम द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स टू द ओवरहैंगिंग डोम। On His Majesty's coronation, he had commanded that 86 lakh worth of gems and precious stones and 1 lakh tolas of gold worth another 14 lakh should be used in decorating it. तो जो ये शाहजहां की ज्वेल थ्रोन या गद्दी तख्त मुरस्सा थी, इसको जब कॉरोनेशन यानी कि जब राजा का ताज पहनाया गया, ये ऑर्डर हुआ कि उसको जेम से लाद दिया जाए, जेम्स लगा दी जाए, पत्थर प्रेशियस स्टोन्स लगा दी जाए, जिसकी कीमत 86 लाख थी, और 1 तोला सोना लगाया जाए जो कि तकरीबन 14 लाख के था बराबर था, यानी कि 86 + 14 इट मेक्स 100 लाख। शुड बी यूज टू डेकोरेटिंग इट। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि how much worth of gems and precious was used in jewel throne. So you can write 86 lakhs, or gold 1 tola equivalent to 14 lakh. The throne was completed in the course of 7 years, और ये 7 साल में बनी थी, and among the precious stones used upon it was a ruby worth 1 lakh of rupees that Shah Abbas Safavi had sent to the late emperor Jahangir. तो जहांगीर को जो भेजा गया था 1 लाख रुपए का रूबी का पत्थर है वो लगा हुआ था। And on this ruby were inscribed the names of the great emperor Timur Shahib Ikran, Mirza Shahrukh, Mirza Ulugh Beg, and Shah Abbas, as well as the names of the emperors Akbar, Jahangir, and that of his Majesty himself, यानी कि शाह जहां। तो ये सब important part है स्टूडेंट्स, और ये लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। अगेन आई होप आपको पसंद आया होगा, and if you have enjoyed this video, do like, comment and share with your friends.